ये देख लेते हैं। ये कहता है C is the midpoint of the line joining A and B. The line through C perpendicular to AB crosses the y-axis at D. Find the equation of the line CD giving your answer in the form y equals to mx plus c. Now these questions tend to be very confusing if you look at them directly like that. अगर आप ये notice करें कि इसमें कोई diagram नहीं बना हुआ, yet the question is very complicated. So what I should always do is whenever I don't have a diagram in the question and I think I don't understand the question, then I should draw the diagram. सही है, मैंने 2 points mark किए A और B. अब आप उसको randomly mark कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो exact points mark करें. आपने A और B mark कर लिया 14, -7 and -6, 3. सही है. C is the midpoint. Okay, C is the midpoint of this. तो मैंने सेंटर में C मार्क कर दिया. The line through C perpendicular to AB. So I'm talking of a line through C perpendicular to AB crosses the y-axis at the point D. If it crosses the y-axis at the point D, can someone tell me कि D के coordinates क्या होंगे? D का कोई एक coordinate आपको पता है? 0, y. 0, y हो जाएगा. If it crosses the y-axis, then it's 0, y. सही है, तो ये भी मैंने लिख लिया. उसने कहा find the equation of the line CD. When I talk about the equation, मुझे 2 चीजें चाहिए होती हैं. एक तो मुझे gradient चाहिए होता है और 1 point चाहिए होता है. Gradient कहाँ से आएगा? Perpendicular of AB से आ जाएगा. और एक point क्या होगा? C होगा, which is the midpoint. So essentially मैं perpendicular bisector की equation निकाल रहा हूँ आपके लिए. I just called it differently this time. I've told you about a line through C perpendicular to AB. That's what I'm really doing. तो पहले मैं gradient of AB निकाल लेता हूँ. Gradient of AB क्या आ जाएगा? 3 -7 -6 -14 -half. Perpendicular का gradient क्या हो जाएगा? 2. Okay. Midpoint. अब मैं इक्वेशन बना दूंगा y minus y1 m x minus x1. I get y plus 2 2x minus 8. You see how simple the question has become because I've drawn the diagram in front of me. Okay, so इस लाइन की इक्वेशन हो गई y equals to 2x minus 10. Coordinates of D. तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए? 0, -10. पार्ट 2 तो फिर बड़ा सिंपल सा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने. ये हो जाएगा बनानी है क्या सर, इक्वेशन बनानी है ऊपर. अच्छा, उसमें इक्वेशन ही बनानी थी. सही है. ओके, लेट मी मूव दिस. अगले पार्ट में वो डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना. ओके, पार्ट 2 में कहते हैं डिस्टेंस ए डी. तो पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालें, फिर ए डी का डिस्टेंस निकाल लूंगा. ए डी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? -10 + 7 स्क्वायर 0 - 14 स्क्वायर 5. A, B and C are such that B is the midpoint of AC. तो मैंने कहा B is the midpoint of
A and C. तो मैं काम करता हूँ, मैंने कहा कि भाई B is the midpoint, तो ये है 2, M, ये है n, -6. C नहीं पता, तो मैंने कहा कि जो midpoint है it's going to look something like this. 2 plus x divided by 2, where x and y are basically coordinates of C. सही है. मिड पॉइंट की जगह मैं क्या लिख दूंगा? मिड पॉइंट की जगह मैं लिख दूंगा n - 6. ये उस दिन भी हमने पढ़ा था कि जब कोई कोऑर्डिनेट अननोन होता है तो इस तरह मिड पॉइंट को यूज कर सकते हैं. अब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा 2n -2 x और ओके. तो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2n - 2. सही. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब नेक्स्ट पार्ट 5 मार्क्स के लिए है. वो कहता है द लाइन i = x1 passes through C and is perpendicular to AB. So there's a line passing through here and it's perpendicular to AB. इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है y = x + 1 and is perpendicular to AB, so I marked the 90 degree. Find the values of m and n. If I have two unknowns, I need two equations to solve simultaneously. क्या होंगी इक्वेशन? सर हमारे पास वो है ना, उसकी इक्वेशन है ये ऊपर परपेंडिकुलर की, तो इसका क्या करूँगा? ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव हो जाएगा. इसका ग्रेडियंट क्या है? इसका ग्रेडियंट 1 है. सही तो है. तुम कह रहे हो परपेंडिकुलर को कर दूं, परपेंडिकुलर का -1 हो जाएगा. ये किसका ग्रेडियंट है? ये हो जाएगा उसका ए सी लाइन का. AC. हाँ, लाइन जो है. सही है. AC का ग्रेडियंट जो हो गया वो -1 हो गया. लेकिन फिर हमारे पास वो, और फिर हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं. तो चलो हम पहले अगर एक इक्वेशन बना लेते हैं. एक इक्वेशन पहले बना ले फिर आते हैं. सर ये AC का ग्रेडियंट नहीं होगा, ये AB का ग्रेडियंट होगा क्योंकि वो इट्स परपेंडिकुलर इट्स AB द है. सेम थिंग बेटा. इट्स द सेम थिंग दानियाल, कि वो तुम AB का निकालो या AC का निकालो, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, राइट? So they will have the same gradient. हो गया -12 - 2m. मैंने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की ना? ओके. चलो, I'll handle this simultaneously later on in a bit. Let me see what the other equation is. Set the coordinates of C. Ibrahim is also telling us to do this. कि हम coordinates of C insert करेंगे तो जो है हमारा मसला हल हो सकता है. हमें पता है कि when a line passes through a particular point, you can insert the coordinates of that point. तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ 2n -12 -m = 2n - 2 + 1. तो एक और इक्वेशन क्या हो जाएगी? -12 - m 2n - 1. अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं. They are weirdly formatted. What I just need to do is, instead of trying to maneuver a lot of things around, I can just say कि ये बन जाएगा -12 - 2n + 1 = m -11 - n. सही है? Views in 1.
यहाँ पे आ जाएगा 4n, ये बन गया 10, उधर जाके कैलकुलेशन सही है। सर वो समझ में? इक्वेशन 2 में वो है 11 माइनस 11 माइनस 2n। -2n था। ओ हो, तो ये 4n हो गया, तो ये 6n हो गया। तो कुछ गड़बड़ हुई है। n की वैल्यू -1, फिर m की वैल्यू आ जाएगी सही है। Does that make sense to everybody? Do this. Get the triangle ABC has vertices there. Show that the triangle ABC is isosceles and find the exact area of this triangle. सही है, हमें पता है एरिया तो हम निकाल सकते हैं। पहले हम आइसोसेलेस प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइसोसेलेस क्या होता है कि कोई भी दो साइड जो है वो इक्वल हो। मुझे नहीं पता कि ए बी और ए सी इक्वल होंगी या ए बी और बी सी इक्वल होंगी, तो मैं जो है वो सारी साइड निकालने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं ए बी की लेंथ निकाल लेता हूँ। Okay, first I'll try to calculate the distance AB, and it's going to be 6 minus minus 1 square plus 4 minus minus 2 square, 49 और 36 कितना आता है? 49 और 36 is 85। फिर मैं AC निकाल लेता हूँ। Let's see if AC is equal। पहले मैं AC -3 minus minus 1 square 6 minus minus 2 square. This becomes 16 plus 64. ये कैलकुलेशन सही है ना मेरी? नहीं सॉरी, 16 प्लस 64 नहीं है, 64 प्लस 4 है, 8 है ये। सही है, 85 सर, 85। तो दो इक्वल आ गई, तो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। एग्जैक्ट एरिया कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी हैव। एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता था, हाफ लिखते थे और फिर कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट करते थे। -2 -1 4 6 6 -3 और पहला वाला रिपीट, फिर यूं करके मल्टीप्लिकेशन। कोई गलती हो तो प्लीज साथ साथ बता दीजिएगा मुझसे। फिर ये हमारी मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे बता देगा क्या आ रहा है। 30 minus 38 पूरा पूरा बता दो मुझे आंसर क्या आ रहा है। तो ये अंदर 4 ब्रैकेट 8 आ रहा है और फिर 4 आ रहा है। 8 8 मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर मेरा तो 68 आ रहा था, देखते हैं। मुझे वही मैं कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ लग रही है। 68 -68 ना? सॉरी,
ओके, मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाएगा। सही है बिलाल ना? अब कैलकुलेशन सही है। Okay, part 2. It says the point D is the point on AB. तो AB पे एक point है D, such that CD is perpendicular to AB. तो D C कहीं और है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। अच्छा, मैं थोड़ी सी इक्वल लाइंस बना देता हूँ। कौन सी इक्वल होनी चाहिए? AB और BC इक्वल होनी चाहिए। तो AB और BC सही है, AB और C। Okay, the point D is on AB such that CD is perpendicular to AB. Okay, calculate the coordinates of D. अब D निकालना है। What do we do about this? सर पहले ए सर बी ए का बी ग्रेडियंट और निकाल के फिर सर इक्वेशन ए निकाल बी के एक फिर बंदा सी और प्लीज। डी के इक्वेशन आर की साइमल्टेनियस सॉल्व करके आना हाँ, simultaneous solve करना है। दानियाल, you were saying the same thing कि जी simultaneous सर। solve करना पड़ेगा किसको? AB और CD को। तो AB की इक्वेशन तो निकालना बड़ा आसान है। पहले AB पे काम कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ AB के लिए क्या क्या जरूरत होगी? ग्रेडियंट ऑफ AB की जरूरत होगी। तो 6 minus minus 1, 4 minus minus 2, 7 over 6। सही है। तो y minus y1, मैं b के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ। सही है, those look easier। x minus x1, 6y minus 36, 7x minus 28. So I get minus 36 plus 28, 7x minus 6y minus 8. ओके, फिर एक इक्वेशन हो गई AB की। CD की इक्वेशन चाहिए अभी भी मुझे। तो CD की इक्वेशन कैसे निकालूंगा? मैंने कहा इक्वेशन ऑफ CD निकालना शुरू करते हैं। M ऑफ CD क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑफ AB। तो क्या हो जाएगा? -6/7। फिर हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम C के कोऑर्डिनेट्स यूज कर लेंगे। C के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 6, -3। 6, -3 है, तो हमने कहा कि इसकी इक्वेशन बनेगी y minus y1 m x minus x1। सही है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6x plus 7y equals to 36 minus 21, 15। Walid, are those the correct equations? Walid, सर सही लग रही है। तुम्हारी क्या आई हुई है ये बताओ। मैंने दूसरे वाली बाद फर्स्ट दूसरी वाली नहीं करी ना, फर्स्ट वाली तक करी थी। दूसरे वाली वलीद ने कर ली। वली शफकत सही है। जी सर सेम नहीं है। ओके ग्रेट। 7y plus 21 is equal to minus 6s plus 26। सही है। अब simultaneous आप सॉल्व कर लें। I am hoping everybody can do that right now. I will do this on a calculator because I want to save some time. तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 9/5 है। ये सही आंसर है। I want everybody to do this themselves. Try this please quickly. सर क्वेश्चन 2 points of coordinates a 5, 7 and b 9, -1 find the equation of perpendicular bisector b। तो पहले मिड पॉइंट निकालना होता है ab का। 5 plus 9 divided by 2। I think everybody understands the idea of perpendicular bisectors now. We've done that several times। Okay,
7,3 तो ग्रेडियंट निकालना होता है ए बी का परपेंडिकुलर करना होता है ये जाएगा हो जाएगा 2i equals to x minus 1. So yeah, that's the equation of the perpendicular bisector of AB. I hope everybody got that. फिर वो कहता है कि the line through C parallel to AB meets the perpendicular bisector AB at the point X. The line through C parallel to AB. तो कहाँ पे बनाऊंगा लाइन? एक parallel to AB लाइन बना देता हूँ. C तो कोई भी पॉइंट हो सकता है. Meets the perpendicular bisector at the point X. Find by calculation the distance bx. 5 मार्क का सवाल है तो थोड़ा काम जाहिर सी बात है इसमें करना होगा. सही है. पहले मैंने ड्रॉ कर लिया just to see what's happening and then I'm going to try to solve it. अब मुझे नजर आ रहा है कि if I want to find x I'll have to solve this and this simultaneously. मुझे ये और ये simultaneous solve करने पड़ेंगे. मेरे पास इसकी तो इक्वेशन आ गई है. इसकी इक्वेशन क्या आ गई है? Perpendicular bisector की अभी मैंने इक्वेशन निकाली x minus 1. Should I work on the equation of cx now? सही है. सर अब जो है उसके निकाल लें. हाँ वो cx का जो ग्रेडियंट होगा वो ग्रेडियंट ऑफ ab के बराबर होगा. कितना था ग्रेडियंट ऑफ ab? -2 था. और c के कोऑर्डिनेट्स क्या है? c के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2. तो मैं बनाऊंगा y minus y1 mx minus x1. y minus 2 equals to minus 2x plus 2 plus 4. Okay. Simultaneous with 2y equals to x plus 1. So हो जाएगा 2 minus 2x plus 4 equals to x plus 1. कुछ गड़बड़ तो नहीं है? प्लस x minus 1 है. क्या x minus 1 है वो? अच्छा दूसरी साइड पे. और कोई तो गड़बड़ नहीं लग रही. सर सही आ रहा है 9/5 y की वैल्यू 2/5